Hello everyone, I hope that you all have understood the balancing of chemical equations in the previous lectures. So our next topic is chemical equation, right? Information conveyed by a chemical equation. It means what information we can infer from a chemical equation, right? If we see a chemical equation, then what idea can we have in that chemical equation? Is it clear? Right? Let me write a general chemical equation. Let us suppose a chemical equation is there which is having two reactants and they are forming the two products. Let us suppose the two reactants are, one is A, another one is B, and they are reacting together to form two products. One is C and another one is D, right? We don't know that which reaction is this one, but we are having only the written formulas of the reactants and the products. Then what information can we get? So after seeing such kind of reaction, what we have, we can get that the information regarding the reactants and products. So after seeing a chemical equation, we can have an idea about the reactants and products. It means how many reactants and how many products are present, or which reactant and which products are present, right? So here what I can say, A and B, these are the two reactants. So A is the formula of one reactant, B is the formula of another reactant, C is the formula of one product, and D is the formula of another products. Any chemical compound can be there at the place of A, B, C and D respectively, right? Okay, so the first information that we get from a chemical equation, that is the name of reactants and products. It means we come to know about the reactants and products. Is it clear? Right. As we know that chemical equation essentially contains the chemical formulas of the reactants and products. I am again writing this one, that is A plus B, that is forming C plus D. So along with the name of reactants and products, we also have an idea about the chemical formulas, right? So what are the formulas of reactants and products? This can easily be done. This can easily be obtained from the chemical equations. Last year in the ninth class we studied about the mole concept, right? It means everything goes by the mole concept. So if we have an idea about the reactant and product, then we will also have an idea about the amount of reactant and products, which the reactants and products are present in which amount. It means how many number of moles of reactants and products are present. That can easily be obtained by a chemical reaction. For example, what we can say, we have taken an example, and that example was what, twice of H2 plus O2, they are forming twice of H2O. So from this equation, what we have, what information we have, first one is what hydrogen is present as a reactant, oxygen is present as a reactant, and the H2O or water is present as a product. So the formula of hydrogen is H2, formula of oxygen is O2, and formula of water is H2O. Right here we are having some numbers by which these are multiplied. So hydrogen is multiplied by 2. So what we can say, that 2 mole, according to the mole concept, 2 moles of hydrogen are present. If here oxygen is multiplied by 1 only, right? Nothing, 1 is not written here, so what is there, only 1 only. So 1 mole of oxygen is present, right? Similarly water is multiplied by 2, so what we can write, that 2 mole of water is present. So this is the relative amount, right? This is the relative amount that we can get from the chemical equation. And you all know that 1 mole of hydrogen has 2 gram mass. So 2 mole of hydrogen gas will have the 4 gram mass. So we are having the idea of mass. We know that 1 mole of oxygen, one oxygen atom's atomic mass is 16, so 2 is having 32. So 1 mole of oxygen is having 32 gram, right? Similarly 1 mole of H2O has H2 has having 2, so oxygen is having 16, so total 18 gram molecular mass, that is equal to the 1 mole. So 1 mole is having 18 gram, so the 2 moles will have 36 gram. It means after seeing a chemical equation, we can have an idea about the name of reactants and the products. We can have an idea about the formula of reactants and products. And after seeing a balanced chemical equation, we can have the idea about how many number of moles of reactants and products are present.
and if we come to know the number of moles, then we can easily get the mass, because by the mole concept we know that the molecular mass of anything is equal to 1 mole, yeah, a molar mass of anything is equals to 1 mole. Is it clear? It means the fourth thing is what we are also knowing the mass of the reactant and products that are present or formed in a chemical equation. Is it clear? So we have an idea about the masses as well as the amount of reactants and products, right? Next one, it might be possible that in a chemical equation some gaseous reactants as well as the products are formed. Some gaseous reactants as well as the products are formed. We know that gases have volumes rather than mass. Gases have volumes and volume of gases is preferred over mass. So if the gaseous products are there, then by seeing we can also have an idea about the volume of those gaseous reactants as well as products, because in the mole concept we also classified the number of moles in terms of volume also, and that was saying that 22 400 milliliter of anything is equal to 1 mole. Is it clear? Right? It means these 5 things we can obtain from the chemical equation. One is what name of reactants and products, second one is what formula of reactants and products, third one is what amount of reactants and products that is present in a balanced chemical equation, fifth one is what fourth one is what the relative masses of the reactants and products with the help of mole concept, and the fifth one is what if the gaseous reactants and products are there, then the number of moles, then the volume of those reactants and products can also be obtained, right? So the next topic is what steps to write the chemical equation. Actually this information conveyed by a chemical equation and the steps to write chemical equation, these two are the same topics, right? Or these two can be asked by any one heading. Is it clear? Because we know that the steps that we follow to do a thing, that is the information that is associated along with that work. It means, for example, let we let we are doing homework of a particular subject, then we have to complete that homework line by line. It means we are completing that homework in the number of steps, right? So all those steps that we have taken in our consideration, those steps will become the information after completing that page or after completing that homework. Is it clear? Right? So if we see a chemical equation, it means there are some steps which have been followed to write that chemical equation, right? It means whatever the information that we are getting from a chemical equation, those can also be called as what the steps which are used to write the chemical equation. Is it clear? It means ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक सेम ही हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को लिखने के लिए जो स्टेप्स काम में ले रहे हैं, वो लिखने के बाद वो सारे की सारे स्टेप्स ही तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होंगी। हमने किसी काम को किस तरीके से किया, वो उस काम को करने में हमको क्या क्या दिक्कतें आई, वो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हम गए, उन स्टेप्स के थ्रू जाने के बाद में वर्क कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अगर किसी को दिखाएंगे या कोई उसको देखेगा तो उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि ये स्टेप्स के थ्रू हम गए थे। इज इट क्लियर? राइट? सो द स्टेप्स टू राइट द केमिकल equation. Is it clear? So while writing a chemical equation, the number of steps are followed. I am again writing a general chemical equation, and that general chemical equations are what A plus B, and that is forming C and D. Is it clear? Here A and B are reactants, C and D are products. Is it clear? It might be possible that all those reactants which are A, B, C and D, these can be present in terms of solid, these can be present in terms of liquid, these can be present in terms of gaseous form, right? And these can be present in terms of aqueous solution, right? Aqueous solution. This aqueous solution is new term to you. Actual aqueous solution is actually the solution of anything into the water. It means if you take a solution in water, then that is called aqueous solution. Aqueous means water. Aqueous means water. Is it clear? So anything solution into the water, that is called aqueous solution. For example, if you are having sugar, sugar, then that
sugar is in solid state. We know that the sugar crystals are there at our home, and whenever the sugar is mixed into the water, whenever we mix into the water, at that time what will happen? Sugar is dissolved into the water. It means anything dissolved into the water, anything mixed into the water, so then this is known as what? Aqueous solution of sugar, right? It will be called as what? Aqueous solution of sugar. So the two reactants and two products that are A, B and C and D respectively are present here. So and these can be present in any state. So while writing a chemical equation, the states of all the reactants and products are written along with their square, along with those reactants and products in small brackets. It means जो किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की फर्स्ट स्टेप होती है, उस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम उनकी स्टेप्स में कैसे दिखाते हैं? उनकी स्टेप्स में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? माना कि ये सॉलिड में फॉर्म प्रेजेंट था, बी लिक्विड में प्रेजेंट था, सी माना कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट था, डी माना कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था. सो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहला स्टेप पर लिखने का कि जितनी भी फिजिकल स्टेट्स होती है वो सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स कैसे दी जाती है? जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जस्ट पास में स्मॉल ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स में उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर एन example is there in which Haber's process is given. We have already discussed the balancing of this equation, that is N2 plus 3H2, that is forming twice of NH3. So nitrogen is present in the gaseous form, so we have written here G in the small bracket. Hydrogen is also present in the gaseous form, so it is present in the G, that is present G in small bracket. Similarly, this is ammonia gas. This is which gas? Ammonia. So ammonia is also present in the gaseous state, so we have written here small g in terms of in the small brackets. Is it clear? Right. The second thing is what? It might be possible that the chemical equation that we are taking in our consideration, that chemical equation is completing in under different conditions, right? It means every chemical equation is completed in different reaction conditions of the temperature and pressures, right? It might be possible that this particular chemical equation is completed at a particular reaction conditions. If so, those all reactions conditions which affect the chemical equation, those conditions are written above or below the arrow, right? Specifically these conditions are the conditions of temperature and pressure. तो किसी भी इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर के ऊपर हो रही है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होगा. उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? उस टेम्परेचर और प्रेशर को हम, ये जो एरो होता है जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करता है, उस एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम क्या, इसी सेम केमिकल इक्वेशन के लिए ये केमिकल इक्वेशन क्या है? दिस केमिकल equation is taking place at 873 Kelvin temperature and 200 atmospheric pressure. So 873 Kelvin is written above the arrow and 200 atmospheric pressure is written just below the arrow. It doesn't mean that every time you have to write like this. It means all those conditions you can write either above the arrow or below the arrow, or you can use द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टू, राइट? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो रिएक्शन कंडीशंस है, उन रिएक्शन कंडीशंस को हम कैसे शो करते हैं? उसको एरो के ऊपर या नीचे लिख के शो करते हैं, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? इट माइट बी पॉसिबल दैट अ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट. इट माइट बी पॉसिबल दैट अ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन, राइट? तो उस कैटलिस्ट को हम कैसे शो करते हैं? तो पहले इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि कैटलिस्ट क्या है, right? Catalyst, right? Catalysts are those substances which do not take part in a chemical equation but they affect the chemical equation significantly. मतलब ऐसे substances जो कि chemical equation में take part नहीं करते हैं, जो कि chemical equation में take part नहीं करते हैं, मतलब जिनका केमिकल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी प्रेजेंस में, फिर भी उनकी
प्रेजेंस में वो जो इक्वेशन है या वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेज जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस बेटर वे के अंदर प्रोसीड करती है, बेटर वे में कंप्लीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज एनी टीचर इज टेकिंग योर क्लास, राइट? सो अ रिएक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। इट मीन्स अगर किसी क्लास में कोई टीचर क्लास में कोई टीचर टीचिंग करा रहा है, तो टीचर जो है वो टीचर बोल रहा है, और वो जो टीचर बोल रहा है उसको स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देर आर ओनली टू रिएक्टेंट्स, वन इज वोट टीचर एंड अलॉन्ग अनदर वन इज वोट स्टूडेंट, राइट? तो ये जो रिएक्शन हो रही है, हम केमिस्ट्री के टर्म में कहें तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो उन दोनों के रिएक्टेंट के बीच में चल रहा है, और इन रिएक्टेंट्स के बीच में जो चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर ही कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। प्रोडक्ट्स का मतलब ये है उनके बेसिस के ऊपर ही आपके कुछ समझ में आएगा। इज इट क्लियर? पक्का, राइट? तो आप भी जानते हैं क्लास के अंदर कुछ एक अनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हो सकती है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, राइट? तो वो जो रिएक्शन चल रही है या क्लास जो चल रही है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है। सो लेट अस सपोज प्रिंसिपल सर इज ऑन द राउंड, or principal sir is coming in the corridor, and you got an idea that the principal sir is coming towards your class. So after seeing the principal sir, your class becomes silent, your class will become extra aware. It means the principal sir is not taking part in the chemical reaction. That reaction was going on between the students as well as the particular teacher, but the presence of principal sir in the corridor affect the chemical reaction which was taking place inside the room. That chemical reaction हैज़ अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली, राइट? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल सर है वो प्रिंसिपल सर क्लास में नहीं आए थे, प्रिंसिपल सर सिर्फ और सिर्फ किस में थे, प्रिंसिपल सर की प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर में थी, लेकिन प्रिंसिपल सर ने उस रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया, क्लास में एंटर नहीं हुए। इवन देन जो क्लास का डेकोरम था वो क्या हो गया, क्लास का डेकोरम था वो अफेक्ट हो गया, और एक सिग्निफिकेंट और बढ़िया तरीके से क्लास चलने लगी। सिमिलरली हम ऐसे बोल सकते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सर का मूवमेंट था कॉरिडोर में, या डायरेक्टर सर का मूवमेंट होगा कॉरिडोर में, वो मूवमेंट क्या होगा, वो मूवमेंट को हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं। इट मीन्स द प्रिंसिपल सर को हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, कि प्रिंसिपल सर किसी क्लास के अंदर जाके पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई यूजुअल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कॉरिडोर में प्रेजेंट भी हैं तो वो रिएक्शन बेटर वे में हो सकती है, राइट? सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंसेज जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, उनको में रिएक्शन में उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन बहुत सिग्निफिकेंट वे में हो जाती है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो, इट माइट बी पॉसिबल, जरूरी थोड़ी है कि हर क्लास कैटलिस्ट की प्रिंसिपल सर की प्रेजेंस में ही चल रही हो, प्रिंसिपल सर कॉरिडोर में हो तभी चल रही हो सकता है कि बहुत सारी रिएक्शंस में कैटलिस्ट प्रेजेंट हो भी और बहुत सारी रिएक्शंस में कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं भी हो। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उस कैटलिस्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कैटलिस्ट इज रिटन ऑन टू द एरो दैट इज सेपरेटिंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कोई भी अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो उस कैटलिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस कैटलिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं directly writing onto the arrow on. Is it clear? Above the arrow we have to write the catalyst. For example, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आयरन और मोलिब्डेनम, आयरन अलोंग विद द मोलिब्डेनम, दिस इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। आयरन मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में क्या है, ये रिएक्शन हो रही है, तो आयरन को तो हम एफ से लिखते हैं, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम इज ऑल्सो ए element. So this molybdenum along with the iron, or sorry, iron along with the molybdenum is acting as catalyst. तो इस आयरन और मोलिब्डेनम को हमने क्या लिखा, इस आयरन और मोलिब्डेनम को हमने क्या लिखा, एरो के ऊपर लिख दिया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर हम ये देख रहे हैं कि एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देन वी विल हैव एन आइडिया दैट दिस इज द कैटलिस्ट, और दिस इज द पर्टिकुलर कैटलिस्ट विच इज अफेक्टिंग दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो हमने अब तक तीन चीज़ें देखी। पहले चीज़ क्या, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हम किसी केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं वो उनकी फिजिकल स्टेट्स हम स्मॉल ब्रैकेट्स में देते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि
अगर कोई रिएक्शन कंडीशंस प्रेजेंट है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उसको एरो के अबव और बिलो में लिख देते हैं। और थर्ड इज व्हाट, अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो उस कैटलिस्ट को हम कैसे देते हैं, उस कैटलिस्ट को हम एरो के जस्ट ऊपर लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हो सकती है जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती हो, और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हो सकती है जिनमें हम हीट देते हो। इज इट क्लियर? द टू काइंड ऑफ रिएक्शंस कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर और ऑन द बेसिस ऑफ हीट। दो तरीके की हो सकता है कुछ एक केमिकल रिएक्शंस इस तरीके की हो जिनमें हम हीट सप्लाई करते हो, और कुछ एक ऐसी रिएक्शंस हो जिनमें हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है कि इफ वी ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विकलाइम। अगर मान लो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज देयर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइम, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम जो वाइट वॉशिंग करने के लिए जो चूना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। जो मार्केट के अंदर दिवाली के टाइम पे या ऐसे जो 5-5 kg के पैकेट्स में या 10-10 kg के पैकेट्स में जो चूना मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इट मीन्स विच टाइप ऑफ मटेरियल इज प्रेजेंट इन टू दैट कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम घर पे लेके आते हैं तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, राइट। वेन एवर वी ऐड वाटर इन टू इट, एट दैट टाइम इट इज converted into the calcium hydroxide. CaOH whole twice is what, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। विच टाइप, विच लाइम, स्लैक्ड लाइम। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट, स्लैक्ड लाइम, राइट। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक रिएक्शन आप लोगों ने देखी हो, तो जैसे ही हम मार्केट से लाए हुए चूने को पानी में ऐड करते हैं तो उसमें से कुछ गैस निकलती है, राइट। हाइड्रोजन गैस वो निकलती है, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उस हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ही वो वाटर क्या होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, राइट। दैट वाटर और द रिजल्टेंट सॉल्यूशन कीप अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू कूल दैट वन। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड या चूना जो है मार्केट से हम लेके आए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। इज इट क्लियर? जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। ये स्लैक्ड लाइम वाइट वॉश करने के काम आता है। इसके अंदर हम नील मिलाते हैं, इसके अंदर फेविकोल मिलाते हैं और डायरेक्टली वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। बट दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद द रिलीजन ऑफ हीट, क्योंकि उसने टेम्परेचर दिया है, हीट रिलीज की है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई हीट रिलीज हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं कि घर पे अगर सब्जी बनानी है तो वो जो सब्जी बन रही है वो तो केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज उन सबकी प्रॉपर्टीज़ है ना जो चेंज हो रही है। जो भी हमारी सब्जी रॉ फॉर्म में थी, वो सब्जी या वो वेजिटेबल क्या थी, रॉ फॉर्म में थी। जब हम उसको किसी पर्टिकुलर वे के अंदर मिक्सअप करेंगे, एट दैट टाइम इट विल ऐड सम टेस्ट, राइट। तो ये जो सब्जी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गैस स्टोव से कंटिन्यूसली बर्नर ऑन करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू सप्लाई द हीट। तो सब्जी कब बनेगी, जब हम सप्लाई दे रहे हैं हीट की। तो सब्जी की जो केमिकल रिएक्शन है, वो सब्जी की केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब हम उसको हीट देंगे। इट मीन्स एक तो हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें हम सब्जी बना रहे हैं, जिसमें हम हीट दे रहे हैं, और एक वो रिएक्शन है जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की बात की, एक ये रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम हीट, जिसमें हमको हीट मिल रही है। तो इस तरीके की दो रिएक्शंस हो सकती है। तो हमारे पास अभी तक ये आइडिया है कि हो सकता है कि हीट रिलीज हो रही हो, और हो सकता है कि हीट इवॉल्व हो रही, हमें हीट दे रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या हीट लिबरेट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उस हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो प्रोडक्ट के साथ में मिलेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ में लिख देते हैं, राइट। इट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 93 किलोजूल हीट इज 93 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रहा है, तो हम उसको किसके साथ में लिख देंगे, प्रोडक्ट के साथ में लिख देंगे। अगर हीट रिलीज हो रहा है, इट मीन्स अगर कोई एनर्जी प्रोडक्ट के साथ में लिखी हुई है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है और हीट बाहर निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, या ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की कोई भी फॉर्म रिलीज होती है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन। इट मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली
अगर हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम हीट दे रहे हैं, जैसे सब्जी हम बना रहे हैं, तो अगर हीट दे रहे हैं तो हम रिएक्टेंट के साथ में हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू राइट दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी अलोंग विद द रिएक्टेंट्स। अगर मान लो ये रिएक्शन इस तरीके की होती है कि इसमें हमको हीट देनी पड़ती, तो हम इस रिएक्टेंट्स के साथ में हीट भी, वो एनर्जी भी लिख देते। हीट ही एनर्जी होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, ये भी हो जाते। इज इट क्लियर? अच्छा, सो दीज आर सम स्टेप्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी स्टेट्स देखते हैं। वो स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, राइट। अब हो सकता है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन जो कर रहे हैं वो ओपन में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट में कोई गैस फॉर्म हो गई, राइट, इफ द गैस इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट देन दैट गैस विल एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, वो गैस तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें कोई गैस फॉर्म होती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, अपवर्ड एरो की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, अपवर्ड एरो की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। उस गैस के साथ में अपवर्ड एरो में। माना कि हम कोई ओपन में रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे ओपन के अंदर ही पानी गर्म कर रहे हैं, तो जो वाटर वेपर्स होगी वो वाटर वेपर्स कहाँ चली जाएगी, वो सारी की सारी वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो उन वाटर वेपर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बाई प्लेसिंग एन अपवर्ड एरो। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पे Zn प्लस H2SO4। जब ये रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन ये, और माना कि ये रिएक्शन ओपन में कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो उसके जस्ट पास में हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड एरो। हियर एन अपवर्ड एरो इज शोन, दिस इज द अपवर्ड एरो इज, and this upward arrow indicates that the liberated hydrogen gas is escaped into the atmosphere। तो ऐसे जिनमें गैसेस फॉर्म होती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। प्रेसिपिटेट का मतलब है बहुत सारी रिएक्शंस इस तरीके की हो सकती है जिन रिएक्शंस में या तो रिएक्शन होने के बाद में टॉप में या बॉटम में कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो उस प्रेसिपिटेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कलेक्ट हो जाता है अलग से। जैसे मान लो कि हम साबुन अप्लाई करते हैं, साबुन अप्लाई करने के बाद में भी कुछ साबुन के पार्टिकल्स कपड़े के ऊपर रह जाते हैं। या इसको भी छोड़िए, अगर हम पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करने के ऊपर, भगोने के ऊपर प्लेट रखते हैं, प्लेट के ऊपर अगर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो धीरे धीरे वो वेपोराइज हो जाएगा और प्लेट के ऊपर एक वाइट कलर का मार्क आ जाएगा। मतलब प्लेट के ऊपर वाइट कलर की कोटिंग सी जम जाती है। तो वाइट कलर की कोटिंग सी जो बस जम गई, वो अलग हो गई, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जिसको एक्चुअली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्केल और स्लज बोलते हैं। वो खैर लेटर डिस्कशन है, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हो कि जो अलग हो जाता है रिएक्शन से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एंड इफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग इन एनी केमिकल इक्वेशन, तो उस प्रेसिपिटेट को, वो प्रेसिपिटेट कहाँ पे जाएगा, या तो डाउन में जाएगा, बॉटम में जाएगा, या फिर अलग जगह जाके इकट्ठा होगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई डाउनवर्ड एरो, राइट। फॉर द एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन AgCl इज फॉर्म्ड इन एज प्रेसिपिटेट। और अगर AgCl फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो उस प्रेसिपिटेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। आगे वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती है जिनमें हम किसी को डायरेक्टली हीट कर रहे हो, राइट। हम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो सकती है जिनमें हम उनको क्या करें, हीट कर रहे हो। अगर किसी रिएक्टेंट को हम हीट कर रहे हैं, सिंगल रिएक्टेंट को, तो वो जो हीटिंग है उसको हम एक स्मॉल ट्राइंगल लिखते हैं, किसके ऊपर, अप एरो के ऊपर। इज इट क्लियर? इट मीन्स एरो के ऊपर एक स्मॉल ट्राइंगल अगर हम लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है क्या, हीट कर रहे हैं, राइट। सो हीटिंग ऑफ एनीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग एन ए स्मॉल ट्राइंगल अबव द एरो। इज इट क्लियर? तो अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में देख रहे हैं, देखते हैं कि कुछ हीटिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर,
राइट। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या, अगर कोई फिजिकल स्टेट प्रेजेंट होगी तो उस फिजिकल स्टेट को हम उन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ में लिखेंगे, राइट। अब दूसरी स्टेप क्या थी, द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस अंडर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस, दोज रिएक्शन कंडीशंस आर रिटन अबोव और बिलो द एरो, राइट। थर्ड वन इज वोट, अगर कोई कैटेलिस्ट प्रेजेंट है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन कैटेलिस्ट को हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, और ऐसी रिएक्शन जिनमें अगर एनर्जी हम दे रहे हैं तो हम उसको रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे एनर्जी का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है किसी रिएक्शन में तो उस गैस को हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे। अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। एंड इफ हीटिंग इज अप्लाइड इन एनी केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम हीट कर रहे हैं तो दैट हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ स्मॉल ट्रायंगल ऑन टू द अबव द एरो, राइट। सो दीज आर सम स्टेप्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? अगर मान लो कि इन सारी की सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिख दी, राइट, तो ये तो सारी की सारी वही तो हो गई इन्फॉर्मेशन जो हम किसी केमिकल इक्वेशन से पता करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन आप लोग को दिख रही है इसमें CaCO3 इज गिवन है, इसके ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे आइडिया आया कि ये सॉलिड है। अच्छा, इसके एरो के ऊपर एक स्मॉल ट्रायंगल लगा हुआ है, इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि हम इसको हीट कर रहे हैं। फिर इसके फॉर्म होने के बाद में क्या क्या बना, CaO बना जो कि सॉलिड है, फिर CO2 बनी जो कि गैसियस है, और इसने अपवर्ड एरो भी दिखा रखा है, इसका मतलब जो CO2 बनी है वो एटमॉस्फेयर में भी चली गई है। तो जो जो स्टेप्स हम लोगों ने यूज किया किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, वो स्टेप्स ही तो हमारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है इक्वेशन को लिखने के बाद भी। इज इट क्लियर? तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। एंड ऑल दोज स्टेप्स दैट वी हैव फॉलोड टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, ऑल दोज स्टेप्स आर द इंफॉर्मेशन that we convey from a chemical equation. Is it clear? It means if a question comes in the exam that write down the steps to write a chemical equation, then you have to write the steps. And if the same question is asked in another way, that what information can we convey from a chemical equation, so what information can we convey? We can convey all those informations which we were used टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो ये जो स्टेप्स हो गई और इन्फॉर्मेशन हो गई केमिकल इक्वेशन के, दोनों की दोनों सेम चीज़ है। वट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड द आंसर इज सेम, जो स्टेप्स होंगी वही इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो आप लोग इनको वापस से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो पर्सनल चैट में आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। बट ट्राई टू रीड इट लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड। Until then, enjoy the melody of your life. Thank you.